Hello, everyone. Hello, how are you doing today? A very good evening, and welcome to yet another Parenting Sadhana live session. So, today we are going to discuss on something which is a very common issue in Indian joint families, which is over pampering by grandparents. So, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे queries आते रहते हैं, and there are a lot of discussions that I have with my clients on this issue. So I thought let's have our live on this burning issue, which is very important, especially for working parents also. Because in their absence, the child is spending at least 10 to 12 hours with grandparents. And if the parents are feeling somewhere that the child is getting spoiled or over pampered, then certainly this is an important issue which has to be talked about, and parents definitely need a solution for this, for the benefit of the child and his growth and proper progress, right? So we will discuss a lot of aspects today. First of all, it's very important that we discuss that, what is the impact on child when he is being, kind of spoiled with what you say. How is his relationship with his parents affected, or what can we do about it as parents, and how to maintain the family harmony and peace while trying to do the right thing for the child, how to talk to grandparents about this issue, and how to come at a common ground. So we will be covering all these aspects today. Okay. So before we start, I want to know how many of you are people who are staying in joint families. All those who are staying in joint families, please say J. Please write J. All those who are on Zoom session, please write J. Okay. Okay, a lot of you actually. Okay, great. Okay, and how many of you are working, right? W, all those who are working parents. Okay. Okay, great. So now let's start with, first of all, the impact on the child when he is being over pampered by grandparents, or everything that he wants to do is, listen to, and there is never a no said. तो बच्चे पर क्या impact आता है? Of course, वो indisciplined बनता है. He lacks ownership. He develops a poor attitude. Responsibility लेना कम हो जाता है. Of course, there are long-term impacts also, health and emotional well-being, because typically the child is on junk food, his health gets spoiled, obesity is anyways very high in amongst Indian children. So ये सब long-term impacts हैं जो हमें उस समय नहीं पता चलते हैं. And study discipline, because all these things also get impacted. He will not be good at studies many times because he is not listening to his parents. Ultimately, he stops listening to parents in the long run. And starting में तो grandparents बहुत बच्चे को pamper करते जाते हैं जब तक वो छोटा होता है. 7-8 years तक आते आते अगर वो उनके साथ भी ही starts responding back, जो पहले उसने parents के साथ करना शुरू किया, तो तब तक it was fine with grandparents also many times. But जब वो उनके साथ खुद करने लगता है, then they become very aggressive कि अच्छा ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर रहा है. So overall एक issue family में create हो जाता है, and then returning back is very difficult. Okay, so how to go about it? Because here the child is at the loss. Ultimately, the child is suffering. Okay, so what can we do as parents when we see something like that happening in our families? So सबसे पहली बात तो ये कि do not brush this topic under the carpet, कि अरे नहीं इसके बारे में कैसे बात करें, बड़े लोगों को कैसे बोलें, because ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि how to approach them. Because जब भी हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स का होता है अरे चलने दो, अरे इट्स ओके, अरे बच्चा ही तो है, तो वो उस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं.
राइट? तो इस सब्जेक्ट को ओवरलुक या इग्नोर नहीं करना है. इवन इफ दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस एंड वी हैव टू लुक एट द इम्पैक्ट. सो सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना है, दैट इज टेक इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन इन द फैमिली ऑन दिस टॉपिक. और ये जब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तब एज अ पासिंग कमेंट नहीं, जैसे डेली कुछ हमने देखा कि मान लीजिए दादाजी ने बच्चे को एक एक्स्ट्रा चॉकलेट पकड़ा दी, हम कह रहे हैं पापा प्लीज चॉकलेट मत दीजिए ना, इसके दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी जाके उन्होंने दे दी. अब रोज रोज तो इस चीज के ऊपर हम बोल रहे हैं उनको कि अच्छा आज ज्यादा टीवी देख लिया, अच्छा ये क्यों किया, वो क्यों किया. बट उस समय जब ये हो रहा है, तब बोलने से कुछ नहीं होगा. दैट इज ऑफ नो यूज. हमें क्या करना है कि एज अ टॉपिक हमें इस बात पर चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है प्रॉपर एक साथ बैठकर. जब बच्चा आसपास नहीं है, तब पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को एक साथ बैठ करके दे हैव टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू टॉक टू ईच अदर कि प्रॉब्लम क्या है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और इसको एक फैमिली रिचुअल बनाना है कि इस मुद्दे पर बात करनी है. सिर्फ ऐसा नहीं कि जब वो हो रहा है तो हमने एक दूसरे को ब्लेम कर दिया और वो बात खत्म हो गई. नहीं, ये टॉपिक डिफिकल्ट है, डेफिनेटली बात करना भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मदर्स बोल रही हैं कि ये बच्चा बिगड़ रहा है, कुछ करना चाहिए. But father is not ready to listen because father is not ready to speak up in front of his parents. और मदर की बात ग्रैंड पेरेंट्स सुनते नहीं हैं, उनके लॉज सुनते नहीं हैं. तो ये बहुत कैश 22 काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है. बट इस सिचुएशन से भागना नहीं है. अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ये समझना है कि इट कैन नेवर बी माई वे और हाईवे फॉर एनी ऑफ द पार्टीज. It always has to be a cooperative atmosphere where every person should have the right to speak up respectfully. और दूसरे बंदे को उसकी बात सुननी है. इसमें एज बैरियर की कोई बात नहीं है. अगर आपके इन लॉज आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपके हस्बैंड को वो रोल प्ले करना है. अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि कपल की आपस की अंडरस्टैंडिंग ही इतनी अच्छी नहीं होती कि वो लोग अपने पेरेंट्स से जाकर के बात कर सकें. तो यहाँ पर लेडी का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड से किस तरह से बात करके उसको समझा रही है कि देखिए, ये मैं जो आपको बता रही हूँ कि हमें बैठ करके एक साथ बात करनी है इन लॉज से. दैट इज नॉट कि हमें कहना है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बट ये बच्चे की भलाई के लिए है और लॉन्ग टर्म हम इसमें गलत नहीं जा सकते. सो आई नीड योर सपोर्ट इन दैट. और किस तरह से बात करनी है, उस समय बात करनी है जबकि हस्बैंड उस जोन में है जब वो सुन सके, सोते हुए, या जब वो ऑफिस से थके हुए आए हैं, या जब आप लोगों की लड़ाई चल रही है, या फिर जब बच्चा ऑलरेडी कोई गलती कर चुका है और ये सारी चीजें चल रही हैं, तब उस समय नहीं. जब एक शांति का अच्छा माहौल है, तब उस समय पहले से उन्हें बता करके कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, और फिर इसके बारे में बिना कोई ब्लेम गेम किए क्लियरली अपनी बात कैसे रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ ये समझना देखिए कि आपका हस्बैंड हो सकता है अपने पेरेंट्स के सामने कुछ ना बोल पाए. बहुत सारे बेटे अपने पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि दे हैव बीन ब्रॉट अप इन एन अथॉरिटेरियन parenting style, in that kind of an environment. So they are not able to open up their mouth in front of their parents. Maybe you are from a more modern family or a more relaxed kind of environment where your parents have been talking to you, where it is not like, okay, you are younger, so I don't want to listen to you. Maybe you have not been brought up in that kind of an environment. So you talk and discuss things very openly, but your husband's family and your husband are not very open about it. तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप हस्बैंड को बोले कि ठीक है, बात मैं कर लूंगी, आप प्लीज मेरे साथ में जस्ट रहिए, क्योंकि बात तो देखिए करनी जरूरी है. अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं बोल लूंगी, लेकिन आपका वहां रहना जरूरी है, बिकॉज यू शुड नो व्हाट वी आर टॉकिंग एंड हाउ वी आर टॉकिंग.
और बीच में अगर मीडिएशन की जरूरत होगी तो आपका रहना जरूरी है। तो ये तो एक बात हो गई कि हस्बैंड का रहना वहां पे जरूरी है, हस्बैंड और इन लॉज को साथ में बैठ के सबको बात करनी है, राइट। अब बात आती है कि बात करनी कैसे है और बात शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज जो समझने वाली है कि यू जस्ट आइडेंटिफाई टू प्रॉब्लम एरियाज, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन टाइम एंड जंक फूड, क्योंकि ये दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि सबको ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके इश्यूज और भी हो सकते हैं, काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप कोई भी दो प्रॉब्लम एरियाज पहले आइडेंटिफाई करके चलिए और उनके ऊपर बात कीजिए। जैसे कि जो जो अभी आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ 100 चीजें ले लेंगे तो उनपे वर्क नहीं हो पाएगा। तो आप कोई दो चीजें लीजिए और उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स से समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं वो उनकी तरफ से वो प्रॉब्लम्स हैं भी या नहीं है। उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? जहां पे उनको बोलने का मौका मिले, और जब वो बोले तो पेशेंटली उनकी बात सुनिए। जैसे कि अगर बात हो रही है कि आपने उनको एक दिन बिठाया कि चलिए हम बात करते हैं, बच्चा थोड़ा सा जैसे बिहेव कर रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इस पर आपकी भी राय लेना चाहते हैं कि बच्चे को कैसे सुधारा जाए। तो आप पूछ सकते हैं कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि बड़ा होकर ये बच्चा कैसा बच्चा बने, है ना। तो उनका उनका क्या कहना है इस बारे में? ऑफ कोर्स वो यही कहेंगे कि अच्छा बच्चा बने, पढ़ाई में अच्छा हो। तो फिर आप पूछेंगे कि अच्छा तो पढ़ाई में अच्छा होगा, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ आप और क्या चाहते हैं, वो किस तरह का उसका स्वभाव हो, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जब वो बताना शुरू करें तो उनकी बात ध्यानपूर्वक सुने और पूछें कि अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है? तो कहेंगे अरे अभी तो बहुत छोटा है, आप इतना ध्यान मत दो। पर आपको उन्हीं के सवाल में से, जवाब में से सवाल निकालने हैं और ये समझना है कि जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उनको टोके बिना जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि हम पेरेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के साथ, हम कहेंगे कि पहले होमवर्क कंप्लीट करो उसके बाद ही खेलने जाना है, लेकिन बच्चा कह रहा है कि मुझे पहले खेलने जाना है और मैं बाद में होमवर्क करूंगा, और हम कहते हैं नहीं तुमने हमारी बात कैसे नहीं सुनी। अब ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से उनको पता है कि अच्छा अगर बच्चे को पहले खेलने भेज देंगे तो बाद में वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। सो दे से कि ओके बेटा गो। So they are basically not taking sides of the child, but they are being prudent because they have learned this from their life experiences. So sometimes their experience is actually very helpful in keeping that flow and that harmony in the family, which we think is, overstepping their authority. Why are they interfering? Actually, it's not interference. It's helping us as parents only because we are new in this role, and sometimes we are being too strict or over rigid with our children, which is not required so many times. So try to understand, is this coming from that experience of letting it go because we are being too strict? Or maybe it could be that they have not enjoyed their parenthood too well because they were busy working, and or they had a lot of family responsibility. So now they really just want to enjoy that time when they're seeing a young life flourish, right? Or it could be because of blind love, because maybe a child has come in the family after a long time. Or it could be that they don't want to be the bad cop, because sometimes they are afraid. Grandparents are afraid of mothers, of fathers, because they would say अरे देखो ये हमारे बच्चे को रुलाते हैं हमारे पीछे से, they can't even take proper care. If the child is crying when the mother comes back home, what would the mother think of us? That we are not taking good care of the child. So let's not say no to anything. Let's just keep on saying yes, yes, yes. And that's how the child will be happy and everything will go fine in the family. So there are a lot of aspects that are in the play, right? So sometimes, grandparents don't even understand the long-term impact. They just think कि okay, हम अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रहे हैं, छोटा है अभी चलने देते हैं। अब वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका बच्चे पर क्या इम्पैक्ट होगा इफ दे आर नॉट टेकिंग अ गुड केयर राइट नाउ। ओके, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि देयर इज अ लैक ऑफ पेशेंस, एट दिस एज. Just understand they have worked hard all these years,
And now after retirement, maybe they want to just relax. Maybe they are not so much invested in your responsibility. ये responsibility उनको forcefully दे दी गई है. They just wanted to lead a very relaxed life now. And now this grandchild is with them, जिसको वो ना भी नहीं बोल पा रहे, but वो उसकी पूरी responsibility लेना भी नहीं चाह रहे. तो आपको देखना है कि what is the scenario in your case? Is it like blind love or is it something else? बिकॉज इस केस में अगर आपको दिख रहा है कि वो नहीं लेना चाह रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन फॉर यू द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी अ क्रैश और अ नैनी और अदर ऑप्शंस. You will have to figure out your responses depending on why they are doing what they are doing. Okay, there are various reasons, and we are right now just talking about pampering grandparents. Sometimes the grandparents are too strict also. So you really have to understand what is your scenario and accordingly work on that. So सबसे पहली जो चीज है कि try to reach at a common ground on small aspects. Come up with joint solutions for improving the child together. अब इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, जैसे कि जो हम डिस्कस भी करेंगे. लेकिन आज के पेरेंटिंग साधना के लिए हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे 15 मिनट्स आप हो चुके हैं. एंड आई नो मदर्स को अपने बच्चों को सुलाना होता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी वून्ड अप बिफोर you pack for the day. So I don't want to take too much of your time because ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं इसमें रश थ्रू करके जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट नहीं करना चाहती हूँ. आई वांट कि इसको मैं पूरा जस्टिस दे सकूं. और तब तक अगर आपके पास भी कोई क्वेरीज हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो हम उनको या तो कल के अपने सेशन में एड्रेस करेंगे, या फिर मे बी वील हैव टू टेक वन मोर सेशन डिपेंडिंग ऑन कि हमारा सेशन किस तरह से जाता है. जो लोग YouTube लाइव पर जुड़े हुए हैं, दे कैन सब्सक्राइब सो दैट दे डोंट मिस टुमारो सेशन. एंड जो लोग Zoom पर हैं, please be on time for tomorrow's session, and you can also share and leave your comments in the chat box as to what all things do you really want to listen more from this over-pampering episode. So thank you for being here tonight, and good night, and see you tomorrow at 9:15 p.m.